Friends, welcome to Universal Math classes. Myself, Dharmendra Dalal, lecturer in mathematics, presently posted in JSSS Ritoli, Rohtak. Students, in today's video, we'll discuss exercise 1.1 of class 11 sets. Exercise 1. Let's start. Question number 1. Which of the following are sets and justify your आंसर. हमें आंसर को जस्टिफाई भी करना है और ये बताना है कि इनमें से सेट कौन सा है. जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में किया था कि सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. वेल डिफाइंड कलेक्शन. वेल डिफाइंड से हमारा क्या मीनिंग, हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि व्हाट वी आर टॉकिंग, व्हाट इज द क्वेश्चन इज अबाउट. फर्स्ट पार्ट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का, द कलेक्शन ऑफ all months of a year beginning with the letter J. Collection of all months of a year. हमें पता है 12 months होते हैं, बट यहाँ कौन से क्या है, beginning with the letter J. बिल्कुल क्लियर है, beginning with the letter J, months of an year. They are January, June and July. It is well defined. Yes, it is set. Yes, it is set. It is a सेट. जस्टिफाई के लिए हम इसका आंसर लिख देंगे. क्या क्या इसके रीजंस में क्या क्या लिखेंगे. मंथ ऑफ नेम्स, जनवरी, जून एंड जुलाई. इट इज वेल डिफाइंड. इज वेल डिफाइंड. इज वेल डिफाइंड. Well defined. So that's why it is a set. Next part, a collection of 10 most talented writers of India. 10 most talented writers of India. 10 most talented. Is it well defined? No, it's not well defined. Because किसी को मुंशी प्रेमचंद अच्छा लगता है, तो किसी को तुलसीदास अच्छा लगता है, किसी को सूरदास अच्छा लगता है, किसी को चेतन भगत अच्छा लगता है. तो इट इज नॉट वेल डिफाइंड. नो, इट इज नॉट वेल डिफाइंड. क्या नॉट वेल डिफाइंड? मोस्ट टैलेंटेड. मोस्ट टैलेंटेड. मोस्ट टैलेंटेड. नो, इट इज नॉट वेल डिफाइंड. क्या? मोस्ट टैलेंटेड. मोस्ट टैलेंटेड. Talented. Most talented. Not a. It is no. It is not well defined. It is not a set. So it is not a set. ये set नहीं है. The team of 11 best cricket batsmen of the world. It is also not well defined. किसी को लारा अच्छा लगता है, तो किसी को सचिन अच्छा लगता है, किसी को गांगुली अच्छा लगता है, तो किसी को एबी डिविलियर्स अच्छा लगता है. इट इज ऑल्सो नॉट वेल डिफाइंड. नो. बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन इज नॉट वेल डिफाइंड. Is not well defined. This is not well defined. So it is not a set. ये भी set नहीं है. The collection of all boys of your class. Collection of all boys of your class. You are sitting in the class. You can observe how many boys are there. You can write down all the names. So it is well defined. Collection of all boys of your class. It is well defined. Yes. It is. चलिए लिख सकते हो. Collection of. Yes. Collection of all boys of your class is well defined. Is well defined. So it is a set. Next, the collection of all natural numbers less than 100.
collection of all natural numbers less than 100. Yes. Collection of all natural numbers less than 100 is well defined. So it is a set. ये भी एक सेट, हमें पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफिनिटी तक जाते हैं. सो 1 से लेके लेस देन 199 तक हमें क्लियर है बिल्कुल. इट इज वेल डिफाइंड. नेक्स्ट इज द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद. यस, इट इज आल्सो वेल डिफाइंड. मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नॉवेल्स लिखे हम उनका लिस्ट आउट कर सकते हैं. सो yeah, it is also said. Yes, collection of novels written by Munshi Premchand is well defined. So it is a set. ये भी एक set. नेक्स्ट पार्ट है हमारा collection of all even integers. Collection of all integers is a set. Collection of all odd integer is a set. यहाँ कौन सा है? Collection of all even integers. Even numbers are which are number divisible by 2. It is well defined. Yes, it is set. Yes, all even integers are well defined. अच्छा से डिफाइंड है ये. इवन कौन, अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखना तो कैसे कौन से लिख सकते हैं? 2 4 6 8 एंड गोज ऑन, ऐसे लिखे. नेक्स्ट है हमारा कलेक्शन ऑफ questions in this book. Collection of questions in this book. Yes, it is well defined. We can count the questions in this book. Yes, it is well defined. It is also a set. Reason you will not at your own. Last one part of this question: the collection of most dangerous animal in this world. Collection of most dangerous animals in this world. Most dangerous. इट इज नॉट वेल डिफाइंड. किसी को सांप से ज़्यादा डर लगता है तो किसी को टाइगर से लगता है, और किसी के लिए तो छिपकली विजार्ड भी डेंजरस लगती है. सो इट इज नॉट वेल डिफाइंड. इट इज नॉट ए सेट. नो, इट इज नॉट ए सेट. एक्सप्लेन योरसेल्फ. पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2. A set A is given, contains element 1, 2, 3, 4, 5, 6, and we have to insert an appropriate symbol. Belongs to, we have discussed in the introduction. This sign is for the belongs to. Belongs to means it is related to. It is the member of. It is the element of. और अगर इसको काट दें तो इसका क्या मीनिंग है? It is not a member of, it is not the element of. फिर से, this is the sign belongs to. What does it mean? Belongs to. It is the member of, या it is the element of. अगर इसको ऐसे काट दिया जाए क्या आएगा? Does not belongs to. इसका मीनिंग होगा does not belongs to. या it is not the member, it is not the element of the set. नेक्स्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को. हमें अप्रोप्रिएट साइन इसके अंदर फिल करना है. क्या है? फर्स्ट हमारा सेट तो दे रखा है 1 2 3 4 5 6. देयर आर 6 एलिमेंट इन द सेट. 1 से लेके 6 तक नेचुरल नंबर्स हैं. फर्स्ट पार्ट हमारा 5 एंड द ब्लैंक. इस 5 ब्लैंक भरना है. क्या 5 ए का मेंबर है? चेक करते हैं. यस, 5 इज देयर. तो 5 belongs to. नेक्स्ट 8 ए का मेंबर है? नो, 8 इज नॉट द मेंबर.
देखो 8 इसमें नहीं है, तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू के साइन को से काट दे। नेक्स्ट 0 इज नॉट इन द सेट। नेक्स्ट 4, yes 4 belongs to the set A. Sorry. 4 belongs to 4 is there present. 2, yes 2 belongs to the given set A. 10 does not belongs to the given set. That's all for this question. Next question करते हैं, कहता write the following set in roster form. इंट्रोडक्शन में हमने किया था अच्छे से कि सेट को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या था हमारा, एवरी एलिमेंट इज लिस्टेड सेपरेटेड बाय कॉमास एंड एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट्स, जैसे ये सेट ए लिख रखे है ऐसे। दूसरी फॉर्म क्या थी, सेट बिल्डर फॉर्म, या उसको कहते हैं प्रॉपर्टी फॉर्म। प्रॉपर्टी फॉर्म में क्या था, हमारे पास पूरे ग्रुप को एक नाम दिया था हमने, और नाम क्या दिया था, एक्स, और फिर प्रॉपर्टी लिखी थी कि एक्स क्या है। तो ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है। कैसे, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए इज सेट ऑफ ऑल एक्स, यहां से यहां तक कैसे पढ़ेंगे, ए इज सेट ऑफ ऑल एक्स। अब इस सेमीकोलन को क्या बताया था, सच दैट, उससे आगे हमारी क्या आएगी, प्रॉपर्टी की एक्स क्या है, एक्स is an integer and -3 less than x less than 7। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि x क्या है। x is an integer, yes integer है, integer के बारे में पता है, और integer तो बहुत सारे होते हैं, बट यहाँ थोड़ी और भी रेस्ट्रिक्शन देती है, क्या, -3 is less than x less than 7, यानी -3 x से छोटा है, यानी जो हमारा x है वो -3 से तो बड़ा है और 7 से छोटा है। तो कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे सेट में, इस सेट में ए सेट यहां लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में, वो सारे एक्स आएंगे जो -3 से तो बड़े हैं, -3 से बड़े हैं। अगर हम नंबर लाइन इमेजिन करें इंटीजर्स की, तो बीच में 0, -1, -2, -3, -4, फिर 1, 0 के राइट में चलेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हमें जो राइट में आता है वो बड़ा होता है, लेफ्ट में आता है वो छोटा होता है। तो कौन सा आएगा, -3 के राइट में इंटीजर सबसे पहले कौन सा आएगा, -2, यस -2, -1, देन 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये सेट है हमारा ए। दिस इज इन रोस्टर फॉर्म, दिस इज इन सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सेट बी सेट क्या दे रखा है, इज ऑफ ऑल एक्स। यहां से यहां तक रीड करेंगे, बी इज सेट ऑफ ऑल एक्स। इस सेमीकोलन को क्या पढ़ेंगे, सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक्स क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का हमें पता है कहां से शुरू होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, गोज टू इन्फिनिटी। लेस देन 6 से कम वाले नेचुरल नंबर्स, यस वी ऑल नो, राइट डाउन natural numbers less than 6, 1, 2, 3, 4, 5, less than 6 natural numbers, 1, 2, 3, 4, 5। सेट सी के बारे में बात करते हैं। क्या है सेट सी हमारा, सी इज सेट ऑफ ऑल एक्स। यहां से यहां तक का रीड करेंगे ऐसे, बार बार बता रहा हूं मैं, सी इज सेट ऑफ ऑल एक्स। सेमीकोलन को पढ़ेंगे सच दैट x is 2-digit number. 2-digit number are starting from 10 goes to 99. 2-digit number starting from 10 goes to 99. 2-digit number says that sum of its digit is 8. सारे नहीं लिखने हमें 10 से लेकर 99 तक, वो लिखने हैं जिनका सम ऑफ डिजिट्स कितना हो, 8 हो। लिखते हैं सारे। सेट सी कौन कौन से सम ऑफ डिजिट्स, 2 डिजिट का नंबर, 12 नहीं, 13, 14, 15, 16, 17। फर्स्ट नंबर हमारा 17, फर्स्ट इज एलिमेंट है हमारा 17। आफ्टर दैट 26, देन 35, 44, 53, 62, 71,
80, दैट्स इट। चेकआउट, कोई और तो नहीं रह गया? एक बार फिर से फाइंड आउट करते हैं। 1 7 17, 7 + 1 8, 7 1, यस 7 1 भी हो गया। 6 2 6 2, 6 + 2 8, 2 6 2 6 6 2 दोनों हो गए। 3 5 8 5 3, यस 4 4, यस 4 4 का रिवर्स करेंगे तो 4 4 आएगा। दैट्स नेक्स्ट पार्ट करते हैं, डी पार्ट, sorry, fourth part, set D. D is set of all x. D is set of all x such that x is prime number. Prime numbers are those numbers which are not divisible by another except itself and 1. So is this prime number which is divisor of 60. Which is divisor of 60. Prime number divisor of 60. Set D लिखते हैं यहाँ पर, set D. डी सेट लिखेंगे, सेट डी, ई के सामने आ गया, डी को नीचे लिख देते हैं, डी का आंसर, डी ई एफ का नीचे लिख देंगे, आंसर्स लिखते देते हैं यहाँ पर, डी का इन रोस्टर फॉर्म डी। प्राइम नंबर, प्राइम डिवाइजर्स ऑफ 60, तो 60 के सारे डिवाइजर्स लिख सकते हैं हम। क्या क्या हो सकते हैं 60 के डिवाइजर? 1 × 60, 2 × 30, 3 × 20, 4 × 15, 5 × 12, 6 × 10, दैट्स ऑल। ये सारे के सारे क्या होंगे? डिवाइजर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 60, ऑल फैक्टर्स ऑफ 60, ऑल फैक्टर्स। इसमें से हमें कौन से ढूंढने हैं? प्राइम नंबर्स विच आर डिवाइजर ऑफ 60। कौन कौन से होंगे प्राइम नंबर? इसमें से 2 3 5, यस। नेक्स्ट नंबर इज 7, दैट इज नॉट द divisor of 60, that next 11 13 15 13 17 19, that they are 2 3 and 5, prime number divisor of 60. Next set is fifth part, क्वेश्चन 4 का आंसर था ये। अब क्वेश्चन 5 का लिखते हैं, सेट ई। सेट ई लिखना हमें इन द रोस्टर फॉर्म, सॉरी रोस्टर फॉर्म में लिखें, set of all letters in the word trigonometry. Trigonometry हमने रोस्टर फॉर्म में पढ़ा था कि every element is listed once, separated by commas, repetition is not allowed, omission is not allowed. क्या क्या था रोस्टर फॉर्म में? ध्यान रखने के लिए 3 बातें, all elements are listed, repetition is not allowed, omission is not allowed, separated by commas, enclosed in the curly brackets. तो लिखते हैं T R I G O N N O O आ गया हमारा, O भी आ गया, G O आ गया, N आ गया, फिर O आ गया, M M E E T T तो we have already written, R we have already written, Y. Repetition is not allowed, omission is not allowed. We will write one element once only. Next is sixth part. Sixth and last part, set F. Set of all letters in the word. कौन सा word है हमारा? better. better. सभी letters लिखेंगे इसके भी, B E T, फिर से T आया, एक ही बार लिखेंगे, E we have already written, R. So this is the roster form, this is the set builder form. Question second and third. Pause the video to note it down. Student, next question number 4, exercise 1.1, set class 11. Write down the set in set builder form. अब हमें हमारा सेट रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। पिछले क्वेश्चन में क्या था? रोस्टर फॉर्म दे रखा था, सेट बिल्डर फॉर्म बनाना था। अब इस सेट को देखो, क्या है हमारा? 3 6 9 12। इनके बारे में प्रॉपर्टीज सोचते, क्या 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 है ये 3 की टेबल में आ रही है, मल्टीपल ऑफ 3। तो सबसे पहले लिखेंगे इसका, इन सभी को एक ग्रुप नाम देंगे। क्या नाम देंगे? X, सेट ऑफ ऑल X,
सेट ऑफ ऑल एक्स, इनको नाम भी दे लेते हैं इस सेट को, लेट ए इज सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, हर एक सेट को नाम दे लेंगे ए बी सी डी ई, ऐसे नाम दे लें, बेटर रहेगा। इस सारे ग्रुप को मैंने एक नाम दे लिया है, क्या नाम दिया है, एक्स, और ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 3, सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 3, बट मल्टीपल ऑफ 3 तो गोज टू इन्फिनिटी, कंडीशन और भी होनी चाहिए इसकी, कहां से कहां तक है, लेस देन इक्वल टू 12 एंड जोड़ देते हैं इसमें, and x less than equal to 12. That's it. Multiple of 3, 3 के मल्टीपल है, 3 का पहला मल्टीपल आएगा 1, 3 का दूसरा मल्टीपल आएगा 6, 3 का 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, पहला मल्टीपल 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे मल्टीपल में 2 से, तीसरे मल्टीपल में 3 से, जरूरी नहीं इसको ऐसे लिखे, दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, कोई इसको ऐसे भी लिख सकता है। फर्स्ट पार्ट को कैसे, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज 3n, एक्स इज 3n वेयर n belongs to natural number n is less than equal to 4। ये भी तरीका ठीक है इसका, ये एल्जेब्रिक भी है, ये थोड़ा प्रॉपर्टी भी। फर्स्ट का ही आंसर है, ये भी किसका है, फर्स्ट। नेक्स्ट 2 4 8 16 32, इनके बारे में भी एक प्रॉपर्टी हमें सोचना पड़ेगा कि क्या है, पहचानना पड़ेगा, इनकी इन सब नंबर्स की एक कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और वो कॉमन प्रॉपर्टी इनके अलावा और किसी और की नहीं होनी चाहिए, और किसी भी नंबर की नहीं होनी चाहिए इससे बाहर कोई भी एलिमेंट। जैसे इसमें था मल्टीपल ऑफ 3 एंड लेस देन 12, लेस देन इक्वल टू 12, तो इनकी भी एक ऐसी प्रॉपर्टी हमें सोचनी है जो सिर्फ इन्हीं की प्रॉपर्टी हो, और वो प्रॉपर्टी इनके अलावा किसी और की ना हो। कौन सी हो सकती है, पहले तो इस ग्रुप को एक नाम दे लेते हैं, लेट दिस इज द सेट बी, और नाम हो गया इन सभी का एक्स, इस सेट का नाम हो गया बी और इस ग्रुप का नाम हो गया एक्स। तो बी इज सेट ऑफ ऑल एक्स, बी इज सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, अब क्या है इनके इनकी क्या प्रॉपर्टी कॉमन है, क्या प्रॉपर्टी कॉमन है सब, ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 4, ये 2 की पावर 5, तो ये 2 की पावर्स, 2's पावर, जब x इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर, क्या 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 है, 1 है, 2 है, 3 है, 2 रेज टू द पावर n कर देते हैं, वेयर n belongs to natural number and n is less than equal to 5, less than equal to 5। put the values now, verify करेंगे। एक तो 2 की पावर होनी है, क्या है इसकी कॉमन प्रॉपर्टी, क्या है, ये 2 की पावर है, और कहां से कहां तक है, 1 से लेके 5 तक है। ऐसी प्रॉपर्टी इन नंबर्स के अलावा ये और किसी की नहीं, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो इस सेट से बाहर। यू कैन थिंक 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेम है, राइटली लिखते हैं, इस सेट को नाम देंगे C, C इज सेट ऑफ ऑल x such that x is equal to 5 raised to the power n, सेम है ऊपर वाले जैसा ये, where n belongs to n and n is less than equal to, कहां से कहां तक है इसमें पावर, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, लेस देन इक्वल टू 4, पावर 5 तक था या 4 तक। नेक्स्ट इस सेट को भी नाम दे लेते हैं, लेट D इज सेट ऑफ ऑल x, सेट को नाम दे दिया, इस पूरे ग्रुप को भी नाम दे दिया x। अब इस ग्रुप की प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जो सिर्फ इन्हीं नंबर्स की हो, इनके अलावा बाहर इस सेट से बाहर जो नंबर है उनमें किसी की ना हो। तो कौन से नंबर है ये 2 4 6, इससे अगला सोच सकते हैं नंबर 8, उससे अगला 10, तो ये वेल डिफाइंड तो है। यस, क्या वेल डिफाइंड है,
इवन नंबर्स, इवन नंबर्स, यस ये लिख दो इवन नंबर्स, कोई कहीं तक रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्या लिखेंगे? D is set of all x such that x is an even number. X is an even number. X is an even number. और इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? Set of all x such that x is equal to 2n where n belongs to natural number. ये तरीका भी ठीक है, थोड़ा मुश्किल लग रहा हो बट ऐसे लिखने में प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, इस सेट को भी नाम दे देते हैं E इज सेट ऑफ ऑल x, सारे ग्रुप को क्या नाम दे दिया? x सच दैट। अब हमें इन नंबर्स की एक कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढनी है, और वो प्रॉपर्टी मैं बार बार बता रहा हूं, वो प्रॉपर्टी सिर्फ इन्हीं नंबर्स की होनी चाहिए, वो प्रॉपर्टी इनके अलावा और किसी नंबर की नहीं होनी चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है? 1, 4, 9, वी आर ऑब्जर्विंग दैट दे आर द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। कहां तक है? 100 तक। तो लिख देते हैं such that x is a perfect square number less than equal to 100. Pause the video to note it down. Next question number 5. List all the elements of the following sets. Question number 5 में हमें 6 sets दे रखे हैं. They are in roster form and we have to write all the elements of all the sets. First हमारा first part, A is set of all x. A is set of all x such that x is an odd natural number. X is an odd natural number. Odd natural number. कौन कौन से हो सकते हैं? 10 पे। X is an odd natural number. क्या लिखते हैं इसका आंसर? A सेट में कौन कौन से आएंगे? Odd natural numbers. Odd 1, 3, 5, 7, 9, or given that we will put only 3 dots. This X is odd and natural. Second part, B. B is set of all x. B is set of B is set, यहाँ से यहाँ तक सेमीकोलन से पहले तक, B is set of all x. सेमीकोलन को क्या बोलेंगे? Such that. उससे आगे प्रॉपर्टी है इज एन इंटीजर. यस इंटीजर, बीच में 0 होता है, राइट में प्लस, लेफ्ट में माइनस. x कैसे कंडीशन में है? -1/2 से तो बड़ा है और 9/2 से छोटा है. -1/2, जस्ट इमेजिन ऑन द नंबर लाइन, -1/2 कहाँ आएगा? 0 और 1 के बीच में, और इससे बड़ा है, और 9/2 से छोटा है. -1 इंटीजर, -1/2 से बड़ा इंटीजर इज 0. 0, 1, 2, 3, 4. Check it again. X 9/2 यानी 9/2 4.5. 4.5 से छोटा इंटीजर 4. और कहाँ तक गया? 4, 3, 2, 1, 0. -1 नहीं आएगा क्योंकि -1 तो 1/2 से छोटा हो जाएगा. हमारा इंटीजर -1/2 से बड़ा है और -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है. Next, C is set of all x. C is set of all x such that x is an integer. यहाँ भी x इंटीजर ही है, मगर कैसा इंटीजर है? उसका स्क्वायर करें तो 4 या 4 से कम आए. 4 या 4 से कम इंटीजर. इंटीजर सबसे बीच में जो होता है, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, जैसे तो 0 होगा इसमें. 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 4 से कम आएगा. 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 भी आ सकता है. 3 का स्क्वायर करेंगे नहीं आएगा. लेफ्ट में चलते हैं, 0 था पहले, 0 के लेफ्ट में 0 बीच में था, सॉरी,
जीरो के लेफ्ट में कौन सा है, -1 का स्क्वायर 1, दैट इंक्लूडेड, फिर -2 4, या इंक्लूडेड -3 का स्क्वायर 9, नो दैट. तो वी हैव इन सेट सी वी आर हैविंग द एलिमेंट्स. कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे सी में, -2 -1 0 1 2. चेक इट आउट. नेक्स्ट हमारा set D. D is set of all x. D is set of all x. X is a letter in the word loyal. हमें पता है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. रिपीट होगा इसमें L और L 2 बार रिपीट है तो उसको एक बार लिखेंगे, बाकी सभी को एक एक बार. इट्स वेरी इजी पार्ट. D में कौन कौन से लिखेंगे, L O Y A. L को दो बार L लिख दिया हमने, O लिख दिया, Y भी लिख दिया, A भी लिख, L पहले हम लिख चुके. रिपीटेशन नहीं करेंगे रोस्टर फॉर्म में और किसी को छोड़ेंगे नहीं. कोई छोड़ तो नहीं गया. O भी लिख दिया, A भी लिख दिया, L भी लिख दिया, Y भी लिख दिया. नेक्स्ट है E पार्ट. E इज सेट ऑफ ऑल x. E इज सेट ऑफ ऑल x. यहाँ तक का बार बार बता रहा हूँ, इस पर पढ़ना भी आना चाहिए हमें. E इज सेट ऑफ ऑल x such that x is a month of year not having 31 days. तो लिखते हैं यहाँ पर, इसको यहाँ बीच में लिख लेते हैं. E is set of all x. कौन कौन से x है इसमें, वो मंथ ऑफ द ईयर हैं, वो मंथ ईयर के जिनमें 31 डेज नहीं आते. जनवरी में होते, फर्स्ट इज फरवरी, 31 डेज नहीं होने चाहिए. 31 ही होने चाहिए और कितने भी हो, 21 वाला भी, 28 वाला भी चलेगा, 29 वाला भी चलेगा, 30 वाला भी चलेगा, 31 वाला नहीं. जनवरी फरवरी मार्च नहीं, देन अप्रैल, यस अप्रैल. मई नहीं, जून, यस जून. जुलाई नो, अगस्त नो, सितंबर, यस सितंबर, सितंबर यस. अक्टूबर नो, नवंबर, नवंबर यस नवंबर. 1 2 3 4 5, yes 5. You can check it out again. जनवरी नहीं होगा, मार्च नहीं होगा, देन मई नहीं होगा, जुलाई नहीं होगा, अगस्त भी नहीं होगा, अक्टूबर भी नहीं होगा, एंड नवंबर दिसंबर भी नहीं होगा. दैट्स ऑल. नेक्स्ट 6th part, set F. F is set of all x such that x is consonant in the English alphabet which precedes K. Sorry, K से पहले वाले सभी कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं. तो F कौन कौन से एलिमेंट होंगे, A तो वावल है, B C D E वावल हो गया, F G H I क्या हो गया, वावल हो गया, I नहीं लिखेंगे, J लिख दिया. कैसे प्रीसीड्स, कैसे पहले वाले लिखने थे हमें. B काउंट करते, A इज वावल्स में चला गया, B C D E वावल्स में चला गया, E F G H I वावल्स में चला गया, J K से प्रीसीड्स लिखना. दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. इट्स वेरी इजी क्वेश्चन. मैचिंग द पेयर्स है. मैच द फॉलोइंग. इधर हमारी रोस्टर फॉर्म है, उधर क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म. फर्स्ट हमारा 1 2 3 6, 1 2 3 6 इनकी एक कॉमन प्रॉपर्टी हमें सोचना था तो पहले सोच सकते हो, और अदरवाइज इनमें से मैच करने के लिए क्या है. 1 2 3 6, x इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6. डिवाइजर ऑफ 6 तो है ये, बट प्राइम नंबर नहीं है. तो ये किसकी प्रॉपर्टी हो सकती है, ओड नंबर्स लेस देन 10, ये भी नहीं है. नेचुरल नंबर्स एंड डिवाइजर ऑफ 6, यस दिस इज फॉर द C. ये किसका है आंसर, C. 2 3 ये पहला है हमारा प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, दिस इज A. मैथमेटिक्स D. X, this is the set of all x such that x is a letter in the word mathematics.
1, 3, 5, 7, 9. Yes, odd, they are odd numbers and less than 10. It is for B. That's all for this exercise 1.1 chapter 1 sets. I hope you like it. If you like it, please share and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.